Hi guys, welcome to Solution Mentors. My name is Ketan. In this video, I'm going to talk about CAT and that one thing which will help you to actually crack CAT and it's going to change your perspective also. But before I move it guys, I've got a disclaimer to give you. Number one, you will have to listen to me till the end of this video because if you listen to me in between and if you leave this video, you might not be able to understand my perspective. Number two, this is a very impromptu video which I obviously I'm like 90% of the videos are impromptu. I do not make any script and something like that. So I just thought I'll share this thing with you because we are now 23 days away from CAT. Now, let's understand that over a period of time, CAT as an examination has been evolving. Rather, it has been evolving every single year. If I go back to a decade, CAT was roundabout a speed-based exam wherein you had a lot of questions to solve and it was purely speed-based examination. And CAT 14 days tak chalta tha. So you had examination going on till 14 days. Then you had CAT wherein CAT started asking around about 60 questions, right? Then we started seeing CAT in 2015 had got around about 100 questions. Then in 2020 it came down to 76 questions. And now they are talking about around about 66, 68 questions. तो अगर आप देखोगे guys, CAT as an examination over a period of time evolve हो चुका है, right? But पढ़ाई करने का तरीका, एजुकेशन सिस्टम या फिर हमारा जो पर्सपेक्टिव है एग्जामिनेशन का, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इवॉल्व नहीं हो चुका है. राइट अगेन मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा बट थोड़ा टाइम देना. ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज होती है दैट फॉर अस एज अ स्टूडेंट व्हेन वी आर सी दिस इज व्हाट इवन वी हैड गॉन थ्रू. सो फॉर अस एज अ स्टूडेंट वी टेक कैट जस्ट एज एन एग्जामिनेशन. बट हाउ अबाउट we keep ourselves reminding all the time that oh you know what it's an examination but it's an aptitude and moreover it's a management aptitude. When you attach that management वाला thing to it, उसका पूरा value, उसका पूरा perception, perspective change हो जाता है. You getting my point what I'm saying, right? Because exam तो हमने बहुत सारे दिए हैं. जिंदगी हमारे इंडिया में हम 15-16 साल एग्जाम्स में ही निकालते हैं and then 2 साल MBA के and उसके बाद भी अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारे एग्जाम्स हम देते हैं. सो एग्जाम के लिए हमारा एक माइंडसेट बन चुका है, एग्जाम के लिए हमारा एक पर्सपेक्टिव बन चुका है. सो ये जो एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन है वो एप्टीट्यूड है पर मैनेजमेंट के लिए है, नॉट एनी अदर एप्टीट्यूड, राइट? जहां पे वही किताबी चीजें आपको आती है. सो दिस इज समथिंग दैट वी नाउ नीड टू अंडरस्टैंड दैट and this is one of the reasons that why a lot of people are not able to crack CAT, or this is one of the reasons why a lot of people are not being able to excel in CAT. On the other hand, अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूं, आज अगर हम maybe you are a repeater or maybe you are a first timer and you have given a lot of mocks and you have studied very well. We are in the month of November first week and now we understand that कि देखा जाए तो portion access out of the world है नहीं. देखा जाए तो जो सिलेबस है वो 9th 10th 11th 12th का मेरा मैथमेटिक्स है. अगर मैं देखूं मेरा जो वर्बल है वो भी यार इजी लेवल पे है. ऐसा कुछ टॉप चीज है नहीं. डीआरआर थोड़ा सा अलग लेवल है पर उसमें भी वैरायटी है. सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, जो अपना लाइन ग्राफ पाई चार्ट है, समथिंग दैट वी कैन गेट ट्रेन्ड ऑन वेरी वेल एंड वी कैन लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ बच्चे 2 महीने में करेंगे, कुछ 6 महीने करेंगे, कुछ 9 महीने में करेंगे, कुछ 12 महीने में करेंगे, बट इट्स डूएबल, राइट? अप टू सर्टेन एक्सटेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99% एवरेज, राइट? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एन एवरेज स्टूडेंट इन द कंट्री. तो ये चीजें भी डूएबल है. बट यहाँ पे अगर हम एक बात देखेंगे, जो एग्जाम इवॉल्व हुआ है कैट एज एन एग्जामिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं या फिर अगर मैं 2017-18 वगैरह के बारे में अगर बात करूं, तो मैं थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में. लास्ट ईयर व्हाट आई एम गोइंग टू डिड, 3 घंटे के एग्जामिनेशन 2 घंटे के करे. इट मींस यू ब्रॉट डाउन द एग्जामिनेशन टाइम बाय 1/3 बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर ब्रॉट डाउन बाय ओनली 1/4. आइडियली अगर टाइम 1/3 से कम होता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 1/3 से ही कम होने चाहिए थे. And that's the reason we were expecting around about 67-68 questions last year, which did not happen unfortunately. So here is the limitation. Here is the limitation, and the limitation is time. And by now, अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी होगी या फिर अगर आप रिपीटर हो, आप एक चीज से मुझे 1000% agree करोगे मेरे साथ, is that CAT as an examination does not actually check your IQ. You getting my point, right? Again, 99 वालों की बात नहीं करता हूँ. CAT as an examination does not believe in checking your IQ. It checks your decision making or your ability to solve the exam का paper and get maximum score. तो आपका decision making क्या है? Selection of question. And moreover, it tests your emotional quotient, which is EQ. ये बहुत ज़्यादा important चीज़ है जो मुझे लगता है more than 50-60% बच्चों को नहीं समझ में आती है. ये EQ बहुत important है. बिकॉज पढ़ाई तो हम कर लेते हैं, हम सब चीजें कर लेते हैं, पर कैट बी डे पे फकअप हो जाता है. बी डे पे हम उसको कर नहीं पाते. अब देखो 2 चीजें यहाँ पे. एक बच्चा वो है जो 99% लेवल प्लस है,
उसके लिए ये चीजें काफी इजी है। वो IITian है, NITian है, मे बी SRCC का बंदा है या फिर बिट्स पिलानी है। हमारे पास हमारा प्रांशु 99.95 बिट्स पिलानी है, हमारा केवल है 99.93 बिट्स पिलानी। तो हमारे साथ पास हर साल बिट्स के बच्चे जो टॉप करते हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड, इन बच्चों की ना वो एक आदत है, उनकी हैबिट है, दे हैव दैट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कि जहां पे उन्होंने क्वेश्चन देखा फोड़ दिया, राइट। पर कहीं ना कहीं ये बच्चे थोड़ा VRC में डगमगा जाते हैं। एंड मे बी समबडी इज गुड विद VRC। मैंने ऐसे भी इंजीनियर्स देखे हैं जो VRC में फोड़ते हैं पर क्वांट्स में थोड़े कम होते हैं, वाइस वर्सा। So the point here is that as an examination, what one thing that we all now need to understand about CAT, the most important thing for CAT, which is now, is nothing but strategy. ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बच्चों को लगता है स्ट्रैटेजी क्या चीज है, ठीक है ना, तुम्हें आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका पेपर आपको दिया गया है, अगर आपके पास 76 क्वेश्चन है या फिर अगर आपके पास 68 क्वेश्चंस है, your ability to strategize that paper, choose those questions very well and optimize your score will help you to crack it. And this is exactly what I'm telling you. ये मैनेजमेंट एग्जाम है, जो कॉलेज कल भी मैंने वीडियो में कहा था, जो आपके कॉलेजेस है, IIMs है, राइट, वो यही तो टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दूं जो इजी है, मीडियम है और टफ लेवल है। आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है, आप कैसे दिए हुए उन क्वेश्चंस में से 24, 22, 20, 25 जो भी क्वेश्चंस है, 34 व्हाटएवर, आप कैसे स्मार्टली वो चीजें ढूंढते हो जो आप अच्छे से कर पाओगे और कंपटीशन को बीट करके आगे चले जाओगे। सो CAT एज एन एग्जामिनेशन हैज नाउ बिकम ए मोर ऑफ स्ट्रेटजी एंड लेस ऑफ स्टडी। देखो, पढ़ाई करना तो जरूरी है, राइट, बट ऐसा नहीं कि हमने सब पढ़ लिया तो हम सब फोड़ देंगे। नो, तो अगेन 99 वालों की बात अलग होती है, बिकॉज़ उनकी एक आदत होती है। अगर आप रीडिंग कॉम्पिटिशन कर रहे हो, जैसे मान लो एज अ फैकल्टी हम करते हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन है, फिर कुछ 99% प्लस करते हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन, यार कभी-कभी हम एक आध क्वेश्चन मार्क करके उसका आंसर, बिकॉज़ वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होता है, हमको पता है, हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है, राइट। तो 99 वाला बहुत अच्छा है रीडिंग में, उसको आइडिया है। IIT वाला बंदा बहुत स्मार्ट है मैथ्स में, उसको एक्सपीरियंस रह चुका है। बट क्या ये एक्सपीरियंस हर एक बच्चों को है CAT में? 2,10,000 बच्चे देते हैं, जो 99 प्लस प्लस है वो राउंड अबाउट 2 या 3% 2 या 3% वाले बच्चे, राइट, तो 2 या 3% बोल सकते हो, राइट। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 95-96% ऑफ द किड्स? So you now need to understand that CAT is more of strategy. And let's not talk about the strategy. Number one, you cannot go for every single set of DI. That's number one. It is not about solving all the DI sets. It's all about solving those number of questions. तो जो कि मैं bucketing strategy यहाँ पे बोलता हूँ कि आपने एक सेट में से 2 करा, एक सेट में से 3 करा, this is all about strategy. But most of the time हमारी चीज क्या होती है? We get stuck at a DI. That's EQ. कि एक DI पकड़ा और उसी पे बैठ गए। एक reading comprehension है, उसमें inference based plus fact based question है। Excuse me, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे कैपिटलाइज करो ना यार, इन्फ्रेंस में क्यों चलना है। क्वांट्स में हम एक क्वेश्चन पे 5-10 मिनट देते हैं बिकॉज़ हमारा वो ईगो वहां पे आ जाता है। तो दिस इज व्हाट यू नाउ नीड टू अंडरस्टैंड, दैट योर एग्जाम व्हिच इज CAT is now more of strategy. You need to understand which question you select, which might be low hanging fruits or something that you are good at, or not, thinking about ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, टीएस ये मेरा फेवरेट है, पर टीएस में सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं, उसको छोड़ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे और पीएनडीएल का क्वेश्चन करे, फिर लॉग करे, फिर ट्रिग्नो कर। So this is what you now need to understand. You still have 20-25 days to go. Work a lot on your strategy. Work a lot on your strategy. Last year, 8 questions in quant. 8 questions in quant could have given you 92%. Guys, think about it. Think about it. आज 92% नहीं आते मॉक्स में because of the decision making, because of that EQ, because we do not strategize. कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं कैसे क्वेश्चन उठाऊंगा, मैं कैसे क्वेश्चंस नहीं उठाऊंगा, और उस स्ट्रैटेजी के पीछे बहुत ज्यादा चीजें चलती है। जैसे मैंने कहा था, रूल ऑफ बेंचमार्किंग है, क्वेश्चन सिलेक्शन का फंडा है, ट्रेड ऑफ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सीडूसी में कराई है। एंड अगर आप देखोगे, आपने फीडबैक भी लिया होगा मार्केट में कि सीडूसी में स्ट्रैटेजी पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, अलग विद कंटेंट। यार सिलेबस तो हमको पढ़ाना ही पड़ता है एज एन इंस्टीट्यूशन, राइट, but I personally focused a lot on the strategy because on the D-Day it's not your IQ, that EQ will help you to crack the exam, and EQ आपका तभी अच्छा होगा जब आपकी strategy बहुत सही लगेगी। Ready for point? Last year arithmetic 8 क्वेश्चन bang on 92% है। अब तू 8 क्वेश्चन कहीं से भी कर लेना यार, 40 मिनट में तू अरिथ से 4 कर, अलजेब्रा से 4 कर, but get 100% accuracy, boom, you're right there। Last year तुम्हारे अराउंड अबाउट 5 सेट आएंगे DIR के 8 क्वेश्चन, you are getting 95% time. That's huge.
But how many people actually got 95% in DLR? And the reason is not their intellectual ability. The reason is they got stuck at a step. They chose wrong step. They had that dilemma कि भाई करूँ कि ना करूँ. वो EQ उनका fuck up हो जाता है on a D-Day. कहीं इसमें मानते हो कि नहीं मानते हो कमेंट करके बता देना. So I strongly believe that CAT is more of a strategy, and you don't even have to do 100% of the syllabus now. I mean, the way CAT has evolved over a period of time, you can leave so many questions. You can leave a couple of chapters. Yeah, you want to be 99.99 percentile. So even if you talk about 99.99 percentile, even those folks are leaving 20-25% of the paper. Even they are not able to get everything correct. You get it? You will never see a 99.99 or a 100 percentiler doing every question correct in the examination, doing all 76 questions correct in the examination. They don't do that. Nobody has ever done that. And that is the reason I say that it's not more of your IQ or your ability to do. I mean, अगर मैं 99 वालों को छोड़ दूँ तो बाकी के बच्चों के अगर बारे में भी बात करूँ, it's more of strategy. You got to have your strategy in place कि भाई मेरा क्वांट्स है, मैं क्वांट्स में ऐसे खेलूंगा. बट खाली स्ट्रैटेजी बोलना बहुत इजी है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क जाता है. मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे वीआरसी के बेंचमार्किंग रूल वाला. उससे बच्चों का स्कोर 30, 40, 50% से बढ़ा है. बिकॉज गाइस यही चीजें आपको हेल्प करेगी कैट क्रैक करने के लिए. बिकॉज समय कम है, क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा है. इस बारी आईएम अहमदाबाद पेपर सेट कर रहा है, तो आईएम अहमदाबाद मुझे लगता है 1.8 मिनट्स पर क्वेश्चन देगा. बट आपको लगता है कि अगर वो एक क्वेश्चन के पीछे अगर आपको ज्यादा टाइम देगा तो वो एलओडी को घटाएगा? No, it's IIM Ahmedabad. You getting my point? So what they want to test you is, if I am giving you a maximum time, इंदौर ने 1.5 दिया था, अगर मैं आपको 1.8 minutes देता हूँ per question, you show me how smart you are, that given you so many questions in the bucket or a basket, you will pick up only those which will boost your performance. Guys, आप समझ रहे मैं कह रहा हूँ? And that is the reason at the end of the day, ये percentage का खेल नहीं है. ये 24 में से मैंने इतने क्वेश्चन निकले मेरा परसेंटेज आता है. नो, इट्स अ परसेंटाइल जहां पे आपका कंपैरिजन किसी और बच्चे के साथ होता है. बिकॉज उस बच्चे ने अपना EQ सही रख के स्ट्रैटेजी लगा के 24 में से वही क्वेश्चंस करे जो स्पॉट ऑन थे. हर एक क्वेश्चन उसका सही गया, वो आगे बढ़ता गया. फॉर एग्जांपल डीएलआर में किसी ने 12 पे 12 करे 99 पॉइंट, ही इज अ 99 परसेंटाइल शॉर्ट. किसी ने 21 करे और 10 भी सही आए. You getting my point? तो ये percentile का game है. See guys, I can talk a lot about this. I do take a detailed session about these things. On my in my chat. I mean, जब मैं lectures देता हूँ students mentors में. So I do these kind of things with my kids on Zoom call and all that. This is the YT video, so I can't go on and on. But there is a lot to talk about it. The only thing that I'm telling you guys is that it's time for you to kind of check your strategy and where you're going wrong. Even if you're a 99 percentile, I just want to give you one example. मैंने जितने भी 99 plus हैं, I've got 99.93, 99.95, 99.90, and there's so many people out there. तो अगर आप देखोगे, even these kids these days are using strategy a lot. कैसे? A non-engineer, हार्दिक 99.28 percentile, right? एक normal cliche क्या है? Non-engineer is not good in DLR. Agree? बंदे ने 99.44 फोड़ा प्योरली बकेटिंग स्ट्रैटेजी. अग्री. क्वांट्स में 98.50. वर्बल उसका थोड़ा सा वीक था, बट उसने वर्बल में क्या करा? अब वर्बल में हम क्या करते हैं मोस्टली, मैक्सिमम जनता के बारे में बात करा, नथिंग पर्सनल टू एनीबॉडी. वर्बल में हमारे अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं. वी हैव नो आईडिया हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर अटेम्प्टिंग, एंड नेगेटिव मार्किंग में बैड बच जाती है. सो हार्दिक अटेम्प्टेड ओनली 10 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से. ही गॉट 94%. So the aggregate became 99.28. Now just imagine, had he attempted 18-19 question, which is trained by the way, he would have got around about 80-82% time, because उसका negative ज़्यादा होता, because उसका वो weak area है, और उसका 99.28 से वो सीधा 97 पे आके बैठ जाता. And ये strategy बहुत ज़्यादा बच्चों ने हमारे अप्लाई करा. एक बच्चे ने हमारे खाली 8 क्वेश्चन करे DLR में, 8 क्वेश्चन करे अरिथमेटिक में, अपना समय लिया, अपना टाइम लिया. अगर वो 8 क्वेश्चन करता है 40 मिनट में, आप समझ सकते हो कि पर क्वेश्चन उसको कितना ज्यादा टाइम मिला. So he got 92 there. In DLR he got 95. In VRC he got around about 98.50. His overall was close to 98%. That's what is strategy. That's what is EQ. So guys, I hope, I'm sorry ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ, बट मुझे बात करनी थी और ये बहुत इम्प्रॉम्प्टू था. बट आई होप आपको मैसेज इसमें क्लियर हुआ होगा कि केतन क्या बोलना चाहता है एग्जैक्टली.
And guys, I would really appreciate, I mean it's a request कि आप थोड़ा कमेंट करो इस वीडियो पे और यू नो टॉक टू मी कि हाँ सर ये सही है, आप जो बोल रहे हो वो सही है। अगर आपको लगता है नहीं ये थोड़ा सा गलत है, do comment, I have no problem. But let's understand CAT as an examination. Let's not just take it as an exam and get done with it. Let's understand something beyond CAT, which makes CAT such a beautiful examination and sort of unpredictable also. So guys, that's it from my side. Wish you a very happy Diwali. Stay blessed, have fun, take care of yourself, and after 2 days you can start your studies. थोड़ा chill मारो 2-3 दिन, but ये चीजें ध्यान रखना. That's it from my side, guys. Me and my CDC family wish you all the very best. Take care of yourself.